Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will discuss a very important topic, Lorentz transformation equations using Einstein's postulates of a special theory of relativity. It is lecture 12 of the book Relativity of class BSc Part 1 for physics honors, subsidiary and जनरल कोर्सेस. इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल थ्योरी ऑफ postulates of a special theory of relativity given by Einstein. So first of all, we have to discuss postulates of a special theory of relativity. Einstein gave two postulates for a special theory of relativity. Postulate one is the principle of equivalence or covariance of physical laws. So write down postulate one, which is the principle of equivalence of physical laws. First postulate is also called the principle of equivalence of physical laws. And according to this postulate, the fundamental laws of physics have the same form in all inertial frames. That is, all frames in rest or in linear motion or relative motion with constant velocity or uniform velocity. That is, all laws of physics, that is, all fundamental laws of physics having the same form in all inertial frames. जितने भी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं उन सभी का फॉर्म, उन सभी का रूप सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम होता है. मतलब कोई फ्रेम, ऑल फ्रेम्स रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक दूसरे के रिलेटिव इन द रेक्टिलिनियर मोशन. तो सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में फंडामेंटल और बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स का फॉर्म समान होता है, इक्वल होता है, एंड इट इज कॉल्ड सेम होता है, एंड इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फिजिकल लॉज. राइट डाउन all fundamental or basic laws or physical laws, all basic physical laws having the same form in all inertial frames. इनर्शियल फ्रेम्स किसे कहा जाता है? वो ऐसे फ्रेम्स जो कि या तो रेस्ट में हों या मोशन में हों. तो
moving along a straight line with constant velocity, uniform velocity. Then those frames are called inertial frames of reference. All basic physical laws or fundamental laws of physics having the same form in all inertial frames. And this is the first postulate of a special theory of relativity given by Einstein, and this postulate is called the principle of equivalence or covariance of physical laws. Now postulate number 2. Postulate 2. The speed of light in vacuum remains constant in all inertial frames. That is, the speed of light in vacuum does not change or does not depend on the motion of the observer, either motion of the observer or motion of the source. That is postulate number 2. Write down the speed of light. The speed of light in vacuum, that is c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. A speed of light in vacuum is same, is constant, is same और कांस्टेंट. सभी फ्रेम्स में स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू सेम होता है और कांस्टेंट इन ऑल inertial frames. And speed of light, that is, it is independent of the motion of either, it is independent of either the motion of the observer and the source. In all inertial frames, the speed of light in vacuum, that is c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, is same or constant in all inertial frames and is independent लाइट सोर्स के मोशन पर या ऑब्जर्वर के मोशन पर यह डिपेंड नहीं करता है स्पीड ऑफ लाइट, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द relative motion or motions of the source and the observer. Source and the observer. This is second postulate of a special theory of relativity, which is also called the constancy of a speed of light. It is also called, second postulate is also called the principle of constancy of a speed of light. It is also called the principle of constancy of light. Principle of constancy of light. So these are the two important postulates in relativity given by Einstein. Now we have to discuss Lorentz transformation. We have to derive Lorentz transformation equations using two postulates of a special theory of relativity given by Einstein, which is very important topic. It is usually asked in the universities examinations of graduation, BSc Part 1 Physics. Lorentz transformation equations using a special theory of postulates of a special theory of relativity. इसके पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस.
तो उसमें स्पेशल पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी का यूज नहीं हुआ था। तो उस सिचुएशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों टाइम को टी डैश इक्वल टू टी, मतलब टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ एनी इवेंट relative to frame S and frame S dash were made equal in Galilean transformation, but in Lorentz transformation T dash cannot be equal to T. So we have to find T dash in terms of T. T dash is the time coordinate of an event relative to frame S dash, and T is the time coordinate of the same event relative to frame S. तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज नहीं किया गया था, तो इसलिए उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टी डैश इक्वल टू टी सपोज किया गया था और एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के और गामा का यूज होगा, जिसका वैल्यू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर, दैट इज 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जिसे हम लोग इवेलुएट करेंगे, फाइंड करेंगे। क्योंकि यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है यूजिंग स्पेशल पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जो मेजरमेंट किसी ऑब्जर्वर द्वारा फ्रेम एस में किया जाएगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दूसरे ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्वेशन का, जो कि फ्रेम एस डैश में होगा। तो एक फ्रेम में ऑब्जर्वेशन किसी ऑब्जर्वर द्वारा किया जा रहा है, तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दूसरे इनर्शियल फ्रेम में दूसरे ऑब्जर्वर द्वारा किए जा रहे ऑब्जर्वेशन के। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एन इवेंट in frame S, that is x, can be related to the position coordinate of the event relative to inertial frame S dash, that is x equal to k into, that is x dash equal to k into x minus vt. So k is a proportionality constant which was not taken in the Galilean transformation, because Galilean transformation postulate of a special theory of relativity were not introduced. So modifications in Galilean transformation equations were made by Lorentz by introducing two postulates of a special theory of relativity. To derive Lorentz transformation equations, suppose two inertial frames S and S dash whose x-axis coincide. दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज किया जाता है जिसका एक्स एक्सिस कॉन्साइड होता है, यहाँ एक एक्स और दूसरे का एस डैश का एक्स डैश एक्सिस दोनों कॉन्साइड कर रहा है, और ये वाई है और ये जेड है, ये फ्रेम एस का तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट फ्रेम कहलाता है, तो फ्रेम एस है, और इसका ओरिजिन वो है जहाँ पर कि कोई ऑब्जर्वर सिचुएटेड है जो कि किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, और इवेंट कहाँ है, पी पर है, कोई इवेंट पी पॉइंट पर है, लेकिन एक और फ्रेम सपोज किया जाता है एस डैश, और एस डैश का कोऑर्डिनेट सेट है तीन, एस डैश फ्रेम एस डैश भी तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जिसमें कि एक्स डैश एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर रहा है, एक ही एक्स और एक्स डैश एक ही लाइन के लॉन्ग है, मतलब दोनों कॉन्साइड कर रहा है। और इसका हो गया एस डैश का वाई कोऑर्डिनेट वाई डैश और जेड कोऑर्डिनेट जेड डैश, जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है, वाई
डैश वाई एक्सिस के पैरेलल है। और सपोज किया जाता है यहाँ, लेट अस सपोज एन इवेंट P, event is happening at point P and coordinates of this point P is x, y, z, t relative to frame S dash as observed by an observer at point O, that is origin of the frame, inertial frame S, and relative to observer, another observer O dash situated at the origin of this frame S dash. The coordinates means position and time coordinates of point P where an event is happening, and this coordinate is x, y, x dash, y dash, z dash, t dash, that is coordinate of point P relative to frame S dash. Let inertial frame S dash is moving with velocity v along the positive direction of x-axis relative to the inertial frame S. Write down, let two inertial frames S and S dash, in which the latter means frame S dash, in which the latter, that is frame S dash, moves with constant velocity v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम तभी होगा जब कोई पार्टिकल या कोई सिस्टम रेस्ट या तो रेस्ट में होगा या मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, moves with uniform velocity v along the positive x-axis, along the direction of positive x-axis, that is from left to right. Suppose the origins of two frames coincide and it is frame S dash moves with velocity v along the positive x-axis relative to frame S. S is another inertial frame relative to frame S. Both are inertial frames. दोनों S तथा S dash दोनों inertial frames हैं. Suppose origins of, that is O and O dash of both frames coincides at time t is equal to t dash is equal to 0. Initially at t is equal to t dash is equal to 0, both, that is origins of both frames, inertial frames coincide, दोनों एक जगह होता है t इक्वल टू t0, स्टार्टिंग t इक्वल टू टाइम जब t इक्वल टू t0 इक्वल टू t है तब, लेकिन बाद में टाइम t डैश इक्वल टू t इक्वल नहीं होगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट का यूज करने के बाद उसे हम फाइंड कर सकते हैं t डैश को, और बोथ फ्रेम्स कोइंसाइड। अब it may be expected that the observation made by any observer in frame S can be directly proportional to the observation made by another observer situated at O dash, that is origin of the another inertial frame S dash. So relation between the position coordinate, since the motion of the frame S dash is along positive x direction, so we have to take position coordinate x. So relation between x dash and x, that is observations made by two observers in two frames S and S dash can be related as S में जो ऑब्जर्वेशन होगा फ्रेम ऑब्जर्वर O के द्वारा वह
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रेम अनदर फ्रेम एस डैश में ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा उसी ऑब्जर्वेशन को जब किया जाएगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो पोजीशन कोऑर्डिनेट position coordinates along x-axis of point P, that is where an event is happening, can be related as x dash is equal to k x minus vt. चूँकि at t is equal to t0, at t is equal to t dash is equal to 0, origins of both frames coincide. So after time t, frame s dash is separated by frame s, inertial frame s, बाई डिस्टेंस वी टी टाइम के बाद फ्रेम एस डैश एस से वी टी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो जाएगा. तो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में कि ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किया गया एक्स कोऑर्डिनेट एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने देखा था. लेकिन चूँकि आइंस्टीन पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फर्स्ट पोस्टुलेट ऑल फिजिकल लॉज हैविंग द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, इसलिए एक फ्रेम एस में जो इवेंट हैपन हो रहा है उसको ऑब्जर्वर ओ, उसके ऑरिजिन पर सिचुएटेड ऑब्जर्वर ओ ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वह सेकेंड ऑब्जर्वर सेकेंड फ्रेम में एस डैश के ऑरिजिन पर सिचुएटेड ऑब्जर्वर के द्वारा उस इवेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा. तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के डायरेक्टली उस ऑब्जर्वेशन के सेकेंड ऑब्जर्वेशन के द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाय यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. चूँकि ऑल फिजिकल लॉज हैविंग द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ फ्रेम्स. सो एक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, ये रिलेशन बिटवीन एक्स पोजिशन कोऑर्डिनेट made by the observer in frame S is x, while position coordinate of the event point P, which is x dash, which is observed by the second observer, another observer situated at O dash, that is origin of second frame S dash. So x dash can be directly proportional to x minus vt, and k is a proportionality constant which is independent of x and t. ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो एक्स तथा टी पर पोजीशन तथा टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, एंड इट्स वैल्यू वी हैव टू इवेल्युएट. दिस इज लेसन 1, दिस इज इक्वेशन 1 वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which is independent of x and t, independent of x and t. x and t से इंडिपेंडेंट है लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसलिए कि एक फ्रेम में जो इवेंट हैपन होगा तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट दूसरे फ्रेम के ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किए गए पोजीशन कोऑर्डिनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा using first postulate of a special theory of relativity. Since we have expected that the measurement made in frame S should be proportional to that made in frame S dash, that is relation between x dash and x is linear and given by equation 1. Now using first postulate of a special theory of relativity, the form of all laws of physics or physical laws having the same form in all inertial frames. Therefore, x can be related to x dash and t dash. Now time t is t dash in frame. The coordinate of the event p in frame s dash is t dash, which is not equal to t, as was in the case of
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टी इक्वल टू टी और टी डैश दोनों को इक्वल किया गया था, इसलिए कि उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज नहीं हुआ था। और यहाँ इनिशियली जब दोनों फ्रेम्स का ऑरिजिन कोइंसाइड करता है तो उस समय टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू, स्टार्टिंग में इनिशियली टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 है स्टार्टिंग टाइम, लेकिन उसके बाद टी डैश टी के इक्वल नहीं होगा बाय यूजिंग अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो नाउ x इज रिलेटेड टू x डैश, दैट इज x इज रिलेटेड टू x डैश एंड t डैश, तो उसका भी फॉर्म वही होगा जो इक्वेशन 1 में है, सेम फॉर्म होगा। सो वी कैन राइट x इन टर्म्स ऑफ x डैश एंड t डैश, उसका भी फॉर्म इक्वेशन एक ही जैसा होगा, अंतर केवल होगा कि v के जगह v इज रिप्लेस्ड बाई माइनस v, because we can suppose that motion of frame S, inertial frame S, is along negative x-axis, along the direction of negative x-axis, that is with velocity minus v, because frame S dash is moving relative to frame S with velocity v along positive x-axis। चूँकि फ्रेम एस डैश हमने देखा, फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के रिलेटिव एस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग मूव कर रहा है, इसलिए फ्रेम एस को फ्रेम एस डैश के रिलेटिव माइनस भी वेलोसिटी से उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इनिशियल मतलब प्लस एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस, इट मीन्स माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए माना जा सकता है फ्रेम एस को एस डैश के रिलेटिव। सो अब x का x डैश तथा t डैश के साथ जो रिलेशन होगा वह भी इसी फॉर्म का होगा, इक्वेशन 1 का होगा। सो वी कैन राइट x इक्वल्स टू k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, मालूम करेंगे, x डैश और यहाँ पर v की जगह माइनस v, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस v, और t इज रिप्लेस्ड बाई t डैश। तो इसका भी वही फॉर्म है जो इक्वेशन 1 का है, x और x का x डैश एंड t डैश के बीच जो रिलेशन है ये भी सेम फॉर्म में है जैसा कि फ्रेम इक्वेशन 1 का है, यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सिंस द मोशन ऑफ फ्रेम एस डैश इज परफॉर्मिंग along positive x axis, so coordinates perpendicular to direction of motion remain unaffected, that is y dash we can take y dash is equal to y, z dash is equal to z। चूँकि मोशन फ्रेम एस डैश का मोशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मोशन के मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दो अदर डायरेक्शंस y तथा z के लॉन्ग जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह अनअफेक्टेड होगा, दैट इज y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z। सो वी कैन टेक y डैश इक्वल्स टू y एंड z डैश इक्वल टू z, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज मोशन इज परफॉर्मिंग along positive coordinate axis, so perpendicular directions of motion will be remained unaffected, since motion of frame S dash is along positive direction of x axis. Motion of frame S is along x axis, तो इसलिए x axis के along ही ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, इसलिए y डैश अदर माने x axis के अदर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जो कोऑर्डिनेट्स होगा अनअफेक्टेड होगा, देयरफॉर y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x डैश in equation 1, substituting x dash for k x minus vt from equation 1 in equation 2, that is substituting the values of x dash from equation 1 in equation 2, that is using equation 1 in equation 2. Now using equation 1 in equation 2, we have x equals to k, x dash is k
x minus vt, this is the value of x dash k x minus vt and प्लस vt डैश जो कि सेकेंड टर्म है इक्वेशन 2 का, एंड इट इज, अब के को अंदर कर देते हैं, हाँ, दैट इज इस ब्रैकेट के अंदर के इंटू के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी प्लस के वी टी, के को इस सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिए और एक्स इक्वल्स टू, अब हम टी डैश का वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, के भी टी डैश, दिस इज के भी टी डैश। अब इस टर्म को राइट हैंड साइड में ही रख करके इसी साइड में इन दोनों टर्म को x माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी को इस साइड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और के भी टी डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी और के भी टी डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस, अब यहाँ पर के स्क्वायर को ब्रैकेटेड टर्म दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस के स्क्वायर एक्स एंड प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस वी टी दैट इज प्लस के स्क्वायर वी टी। यहाँ पर एक्स कॉमन हो जाएगा, फॉर दोनों टर्म में है, फर्स्ट सेकेंड टर्म में, तो 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा और के भी टी डैश इक्वल्स टू एक्स कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में, 1 माइनस के स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज के स्क्वायर भी टी, देयरफॉर टी डैश इक्वल्स टू के भी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए दोनों साइड में, तो फर्स्ट LHS में केवल टी डैश और यहाँ RHS में एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के भी प्लस के स्क्वायर भी टी अपॉन के भी, दोनों टर्म में के भी से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी से भी कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, देयरफॉर और टी डैश इक्वल्स टू अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में इसको हम वी कैन राइट इट के टी, इट इज के टी, बी से भी कैंसिल हो गया, के से के स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो गया, के टी प्लस एक्स बाई भी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4 जिसका यूज करेंगे हम टी डैश का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, हमको के का वैल्यू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का वैल्यू ऑब्टेन करना होगा। उस के का वैल्यू अगर ऑब्टेन हम कर लेंगे और इस पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4, ये टी डैश इक्वेशन नंबर 4 है, तो हमको टी डैश का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो उस इक्वेशन में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में 4 इक्वेशंस होंगे, 4 इक्वेशंस होंगे, उसका सेट मालूम कर लेंगे, तो टी डैश मालूम हो गया। अब हमें के डैश का, अब के का वैल्यू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का वैल्यू ऑब्टेन करना है और उसके लिए सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करना होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, तो वैल्यू ऑफ के एंड दिस वैल्यू ऑफ, that is the value of proportionality constant k can be obtained by using second postulate of a special theory of relativity. A special theory of relativity का second postulate का यूज करके, जिसके अनुसार speed of light is same in all inertial frames. तो इसके लिए सपोज किया जाए, let us suppose that a light signal is produced from the common origin of both frames S and S dash at time t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0। मतलब स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 है तो कोई लाइट सिग्नल इमिट हो रहा है जब दोनों फ्रेम का ऑरिजिन कोइंसाइड कर गया है, ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड कर गया है,
तो उस सिचुएशन में कोई लाइट सिग्नल प्रोड्यूस होता है और वह दोनों फ्रेम में इक्वल स्पीड c से ट्रेवल करेगा। तो उस लाइट सिग्नल का पोजीशन फ्रेम s में t टाइम के बाद होगा x इक्वल टू सी टी। पोजीशन ऑफ द लाइट सिग्नल इन फ्रेम s इज डिस्टेंस इक्वल टू x इज द डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम c इंटू टी एंड इट इज इन फ्रेम। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इन फ्रेम s में हो ये इन फ्रेम s में इन फ्रेम s x इज द पोजीशन ऑफ द लाइट सिग्नल और लाइट सिग्नल कब प्रोड्यूस हो रहा है जब दोनों फ्रेम्स s एंड s डैश का ऑरिजिन कोइंसाइड कर गया है। इफ द ऑरिजिन्स ऑफ बोथ फ्रेम्स o एंड o डैश कोइंसाइड देन a light signal is produced and it travels with same speed c in both frames s and s dash. So position of the light signal in frame s after time t is x equal to c into t and the position of the same light signal in frame as observed from frame s dash by second observer situated at the origin o dash of frame s dash is x dash is equal to c multiplied by t dash। चूँकि टाइम कोऑर्डिनेट फ्रेम इनर्शियल फ्रेम s dash के रिस्पेक्ट में t dash है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रेम दैट इज पोजिशन ऑफ द लाइट सिग्नल as observed from frame s dash is x dash is equal to c into t dash after time t dash। यही फ्रेम s dash में हो गया। अब x dash का वैल्यू इक्वेशन 1 से और t dash का वैल्यू इक्वेशन 4 से क्योंकि है यहाँ सामने प्रेजेंट है बोर्ड पर, तो इसमें हम x dash तथा t dash का वैल्यू इक्वेशन 1 तथा 4 से इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज of x dash from equation 1 and t dash from equation 4 in equation 6, t dash from equation 4 in equation 6 we get x dash इक्वल टू x इक्वेशन 1 में था हमने यूज किया था x इक्वल टू x डैश इक्वल टू x डैश इक्वल टू k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k x माइनस वी टी। x डैश का वैल्यू था इक्वेशन 1 में x डैश इक्वल टू k x माइनस वी टी। x डैश इक्वल टू k x माइनस वी टी इक्वल्स टू c एंड t डैश इक्वल टू के टी, यहाँ पर है RHS में के टी प्लस x अपॉन भी 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर हमें k का वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो पहले हम x वाला टर्म को एक साइड में कर लें कि x है, यहाँ पर x वाला टर्म है और ये सी के टी ये सेकेंड टर्म होगा और यहाँ पर के भी टी। तो सी के टी और के भी टी इसको ब्रैकेट हटाने पर माइनस के वी टी RHS में जाएगा तो के वी टी, तो उसको एक साइड में कर लेते हैं और के एक्स वाला टर्म और यहाँ पर जो एक्स वाला टर्म है इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर तो उसको एक साइड में ले आते हैं और के एक्स माइनस एक्स एक्स इंटू सी है इंटू माइनस एक्स सी अपॉन भी 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स टू ये टर्म हो जाएगा सी इंटू के इंटू सी इंटू के सी मल्टीप्लाइड बाई के टी सी के टी और ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म माइनस के भी टी, तो उसको RHS में ले जाएंगे तो सी के टी या प्लस के भी टी प्लस सी के टी, के भी टी प्लस सी के टी। अब इसमें x कॉमन हो जाएगा क्योंकि हमको x का वैल्यू पहले ऑब्टेन करना है और फिर x उसमें x इक्वल टू सी टी x इक्वल टू सी टी पुट कर देंगे उसमें, तो वी कैन राइट इट एज
और x कॉमन कर लेते हैं इसमें, तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म k माइनस, और यहाँ सी बाई भी, सी अपॉन भी 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स टू के भी टी प्लस के भी टी प्लस सी के टी, के भी टी प्लस सी के टी, के भी टी प्लस सी के टी, के भी टी प्लस सी के टी। देयरफॉर x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू के भी टी प्लस सी के टी। के भी कॉमन है दोनों में, टी भी कॉमन है, के टी, के भी टी, के टी कॉमन हो सकता है, भी प्लस सी, के टी भी प्लस सी अपॉन, और ये नीचे के माइनस सी भी 1 माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन के। अब यहाँ पर RHS में और x इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू हम x इक्वल टू पुट कर सकते हैं सी टी, जो इक्वेशन 5 में था। x इक्वल टू सी टी पुट कर दें, सी टी फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वल टू के टी भी प्लस सी अपॉन, और डिनोमिनेटर में के को हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस सी अपॉन भी, और के कॉमन किया है तो नीचे के स्क्वायर हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब यहाँ से टी और टी कैंसिल हो गया, यहाँ से टी और टी कैंसिल हो गया, हमें सी का वैल्यू मालूम करना है, और ये के से के कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी इंटू 1 माइनस, और सी इंटू 1 माइनस सी बाई भी 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू भी प्लस सी। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो के का वैल्यू हमें ऑब्टेन होगा। अब RHS के टर्म को LHS में और LHS वाले टर्म को RHS में, और RHS के टर्म में C को कॉमन ले लिया गया, तो C अंदर ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस भी बाई सी, C प्लस भी था तो C कॉमन ले लेंगे, तो RHS में था उसको LHS में कर दिए, तो C कॉमन लेने पर 1 प्लस भी बाई सी इक्वल टू C 1 माइनस सी बाई भी, 1 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, C से C कैंसिल हो गया, और वी हैव 1 प्लस भी बाई सी इक्वल्स टू, अब इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 1 माइनस, अब सी बाई भी इंटू 1 बाई के स्क्वायर, सी बाई भी 1 माइनस के स्क्वायर, तो माइनस सी बाई भी इंटू 1 बाई के स्क्वायर, और फिर माइनस सी बाई भी को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है, तो माइनस माइनस प्लस सी बाई भी। हमें अब के का वैल्यू मालूम करना है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया दोनों साइड में, तो अब सी बाई भी माइनस सी बाई भी 1 बाई के स्क्वायर, इसको LHS में इसको ले आते हैं। नाउ टेकिंग माइनस सी बाई भी इंटू 1 बाई के स्क्वायर इन LHS, वी हैव सी बाई भी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई के स्क्वायर इक्वल टू सी बाई भी। Now taking v by c, term v by c in RHS, so RHS becomes c by v minus v by c। इसको लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से v by c को RHS मिलेगा, और c by v मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई के स्क्वायर इक्वल्स टू LCM भी सी हो गया, और v से v में डिवाइड करेंगे तो c स्क्वायर, अब c से v c में डिवाइड करेंगे तो v इंटू v स्क्वायर। अब आसानी से हमें के स्क्वायर का वैल्यू और उसके बाद के का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी और भी सी है तो भी से भी कैंसिल हो गया, और 1 बाई के स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ सी नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, डेट इज अब सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया,
और 1/k² इजकल टू 1 माइनस v² c², इसलिए देयरफॉर k² इजकल टू 1/1 माइनस v² c², देयरफॉर k इक्वल्स टू, देयरफॉर वी गेट k हेयर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया, k इजकल टू 1 अपॉन 1 माइनस रूट अंडर v²/c², एंड v/c को हम वी कैन राइट v/c एज बीटा, दैट इज k इक्वल्स टू 1 माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ऑब्टेन किया गया। आफ्टर इक्वेशन 6 इट इज इक्वेशन 7, और k इजकल टू वी कैन राइट v/c एज बीटा, k इजकल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस β², v/c इज बीटा, दैट इज β²। अब इस k का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हमें t डैश का वैल्यू भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन t डैश आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ k, दैट इज 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v²/c² इन इक्वेशन 4, we can obtain the value of t dash, that is time coordinate as observed from frame s dash। t dash क्या है? टाइम कोऑर्डिनेट है इवेंट p का जब ऑब्जर्वेशन फ्रेम s डैश से के ऑब्जर्वर द्वारा किया जाता है, जो o डैश पर सिचुएटेड है फ्रेम s डैश के ऑरिजिन पर। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम 7 इन इक्वेशन 4, we get substituting or using equation 7 in equation 4, और सिंप्लीफाई करके वी गेट, हम ऑब्टेन कर सकते हैं वैल्यू t डैश का इजकल टू t माइनस vx अपॉन c² अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v² अपॉन c², और v/c कैन बी रिटन एज बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब सभी इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें, इक्वेशन 1 से पुट, इक्वेशन 1 में x डैश इजकल टू k इंटू एक्स माइनस वी टी, तो उसमें भी k का वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं x इक्वल्स टू x डैश इजकल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस v²/c² और 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस β²। तो इस प्रकार से 4 इक्वेशंस का एक सेट ऑब्टेन होगा, जिसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाएगा। नाउ टी डैश का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन ऑब्टेन बाई सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 4, वी कैन ऑब्टेन t डैश इक्वल टू t माइनस vx अपॉन c² अपॉन 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस v²/c², दिस इज इक्वेशन 9। तो जो कि इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 9, और इक्वेशन 3 था y डैश इजकल टू y डैश इजकल टू y, z डैश इजकल टू z। तो इक्वेशन, अब सभी इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 9, वी गेट ए सेट ऑफ 4 इक्वेशंस विच इज कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो नाउ कंबाइनिंग इक्वेशंस 1, 3 एंड 9 में हमने टी डैश ऑब्टेन किया k का वैल्यू से, मैंने ऑब्टेन कर सकते हैं t डैश इक्वल टू t माइनस vx/c² अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v²/c²। वी गेट x डैश इक्वेशन 1 में k का वैल्यू पुट करेंगे, k इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v²/c², तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, ब्रैकेट के अंदर था इक्वेशन 1 में, और k बाहर था, तो k का वैल्यू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v² अपॉन c²। दिस इज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का फर्स्ट सेट का ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन a, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ y डैश इजकल टू y, दिस इज इक्वेशन b, z डैश इजकल टू z, दिस इज इक्वेशन, सपोज इट इज इक्वेशन c, एंड t डैश इजकल टू, in equation 9 we have t dash equal to t minus vx/c² upon root under 1 minus v²/c². So finally we have t dash equals to t minus vx upon c² equals to
1 minus v square upon c square. This is equation D, and the set of this equation can be represented by equation number 10, and this represents Lorentz transformation equations. These are Lorentz transformation equations given by which is a set of 4 equations A, B, C and D. So these are known as Lorentz transformation equations. Lorentz transformation equations. और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी तथा जनरल कोर्सेस के सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन को। कभी कभी इसके टेल में पूछा जा सकता है कि अंडर विच कंडीशन Lorentz transformations reduces to Galilean transformation। किस कंडीशन के अधीन Lorentz transformation इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो वह कंडीशन है, एक ही कंडीशन हो सकता है जब भी टू मच स्मॉलर दैन सी, जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा। रिलेटिविस्टिक केस में तो भीज वेलोसिटी v is comparable to speed of light c, but no material particle can achieve the speed of light। तो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा तो उसमें भी स्पीड भी इज टू मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट सी। किसी भी मटेरियल बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट से अगर काफ़ी कम होगा या पार्टिकल का, तो उस सिचुएशन में भी इज टू मच स्मॉलर देन सी, तो भी इन कंपेरिजन टू सी स्क्वायर का वैल्यू काफ़ी लार्ज होगा, वी स्क्वायर काफ़ी स्मॉल होगा, तो v बाई सी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। v स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू सी स्क्वायर, दैट इज 1 बाई सी स्क्वायर बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये केवल x डैश इजकल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इजकल टू वाई, जेड डैश इजकल टू जेड, और यहाँ टी डैश इजकल टू टी माइनस, क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा भी का कंपेरिजन में, यहाँ पर भी। तो इन दोनों को वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला टर्म और वी एक्स बाई ये टर्म दोनों नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो टी डैश इजकल टू टी, एक्स डैश इजकल टू एक्स, वाई डैश इजकल टू वाई, जेड डैश इजकल टू जेड एंड टी डैश इजकल टू टी। तो द कंडीशन transformation equation, Lorentz transformation equations, that is these equations, that is the set of equations given by equation 10 will reduce to Galilean transformation equations under non-relativistic case, that is if v is too much smaller than c। So the condition under which Galilean transformation, ये Lorentz transformations or Lorentz transformation equations, Lorentz transformations reduces to Galilean transformations, Galilean transformations, and that condition is if non-relativistic case, if v is too much smaller than a speed of a body, a speed of a particle, here v is the speed of frame s dash also in this case, so v is too much smaller than the speed of light c, then v by c term v by c in equations a and b of the set of Lorentz transformation equation given by 10 can be neglected, and so equation 10 can be reduced as equation 10 can be reduced as x dash is equal to then equations 10 can be equations 10 are reduced to x डैश सिंपली हो जाएगा x माइनस वी टी, वाई डैश इजकल टू वाई, वाई और जेड के लॉन्ग तो कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि मोशन परफॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो कोऑर्डिनेट होगा वह
वह रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड टी डैश इक्वल टू केवल टी, जो कि v बाई सी स्क्वायर, काफ़ी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि सी बहुत ज़्यादा, सी स्क्वायर बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, v काफ़ी स्मॉल है, और यहाँ पर v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो केवल ये √1 ये नेगलेक्टेड हो गया, तो केवल टी डैश इक्वल टू टी, ये भी टर्म नेगलेक्ट हो गया, तो टी डैश इक्वल टू टी। और ये निश्चित रूप से हम देख सकते हैं इक्वेशन 11, दिस सेट ऑफ 4 इक्वेशंस, दिस सेट ऑफ 4 इक्वेशंस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ऑब्टेन हुआ जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, जब स्पीड ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल इज टू मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर इस कंडीशन को हम एज्यूम करेंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस विल रिड्यूस टू Lorentz transformation equations reduced to Galilean transformation equation, but which is totally non-relativistic case, which will be non-relativistic case. So these are Galilean transformations या Galilean transformation equations, Galilean transformation equations. तो ये कभी कभी टेल में पूछता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, बीएससी पार्ट 1 के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में इसे पूछ देता है कि अंडर विच लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो डिराइव करने के लिए यूजुअली पूछता है, लेकिन कभी कभी इस कंडीशन को भी, अंडर विच कंडीशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंडीशन यही है, इफ v इज टू मच स्मॉलर देन c, दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक केस। क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज नहीं हुआ था, इसलिए टी डैश इक्वल टू टी है, और एक्स डैश में भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के नहीं है। तो बाकी वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, ये तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में था ही, क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग परफॉर्म हो रहा है, तो वाई तथा जेड एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट में कोई चेंज का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो दीज आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब इसी डिस्कशन के साथ यह वीडियो लेक्चर 12 रिलेटिविटी का समाप्त होता है, जो कि बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी तथा जनरल कोर्सेस के लिए है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।